Good morning, my dear students of class 10th. Today I am going to discuss question answers of the chapter Footprints Without Feet that I taught you in my previous lecture. It is very important to go through the entire chapter that you have read, and the fulfillment of the lesson would be succeeded when you will be able to solve all the questions of that chapter. So we are going to discuss question answers of the lesson Footprints Without Feet. As you all know that this lesson is about scientist Griffin. I told you have read the entire chapter, you have gone through the whole chapter, so we are going to discuss the question answer. You and me both will uh, try our best to answer all the questions in easy way. Okay, let's start. Why were two boys in London surprised and fascinated? दो लड़के जो लंदन में चकित रह गए, बहुत चक्के रह गए, वो क्यों रह गए? The two boys in London were surprised. एक्चुअली क्वेश्चन आपका वर्ड से स्टार्ट हुआ है, मैं इसलिए भी आपको ये वीडियो डालता हूँ कि यू should know that how to write the answer of the question, in which tense question is given, in which same tense you are supposed to give the answer of the question. The two boys in London were surprised. Question क्या था? Why were two boys in London surprised? The two boys in London were surprised and fascinated when they saw fresh muddy footprints of a human being on steps of a house. एक घर की सीढ़ियों पर उन्होंने क्या देखे कि फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ह्यूमन बीइंग के, किसी मनुष्य के पैरों के निशान एक घर की सीढ़ियों के पास. बट कुड नॉट सी एनीवन अराउंड. कोई दिखाई नहीं दिया. दे कुड नॉट सी एनीवन अराउंड. देयर वाज नोबडी. एज दे लुक्ड द फ्रेश फुटप्रिंट्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. उन्होंने देखा कोई आसपास है तो नहीं. देयर वर नोबडी हु मेड दोज फुटप्रिंट्स. So both the boys were surprised. In easy way, both the boys in London were surprised to see the fresh muddy footprints made by nobody. They could not see anyone there who made the footprints, so they became surprised. इसलिए वो surprised हो गए. Next, why did Griffin decide to slip into a big London store? Before this question, I would like to suggest first question, very first question that will tell you about Griffin. That question is, who was Griffin? Question mark. What type of person was he? So Griffin was a scientist. He invented a formula of making himself invisible. He was a eccentric, cranky person. What type of person? Eccentric, cranky person who used his formula for bad works. He did not use that formula for the well-being of human being, but he was a very cruel, eccentric, cranky person who used to make people trouble by his wrong tasks. ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने फॉर्मूला ईजाद कर लिया था अपने आप को गायब करने का, लेकिन वो एक सन की एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट
वैज्ञानिक था जिसने अपने फॉर्मूले को काय के लिए यूज किया, लोगों की बुराई के लिए, ना कि उनकी भलाई के लिए। नेक्स्ट, हाउ वाज ग्रिफिन ए लॉफुल लॉलेस पर्सन मैन, कानून को तोड़ने वाला कैसा था? हाउ वाज ही लॉलेस मैन, कैसे थे लॉलेस? ग्रिफिन वाज लॉलेस बिकॉज ही हैड कमिटेड मिसडीड्स। क्या किए थे उसने? बहुत ही मिसडीड्स, गलत काम किए थे। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। क्या किया था उसने? अपने मालिक के घर में आग लगा दी थी। ही स्टोल फुट स्टेप्स एंड क्लॉथ्स फ्रॉम अ लंदन स्टोर। एक लंदन के स्टोर से उसने कपड़े भी चुराए थे। स्टोल अदर गुड्स फ्रॉम ए थिएट्रिकल कंपनी। एक थिएट्रिकल कंपनी थी, थिएटर था, उसकी कंपनी से भी उसने कपड़े चुरा लिए, कुछ चीज़ें चुरा ली थी। एंड ऑल्सो स्टॉल मनी फ्रॉम ए clergyman house to pay his bills. To pay his rent, he had stolen things from the house of a clergyman. एक पादरी के घर से भी उसने सामान चुरा लिया था अपना रेंट पे करने के लिए। He ran away from Iping. और उसके बाद he ran away. तो he did all the things, mischievous things. So he was not a lawless person. लॉलेस पर्सन था, ठीक है। ही डिड नॉट फॉलो रूल्स लॉज, ही डिड ऑल द टास्क अकॉर्डिंग टू हिज असेंट्रिक मेंटेलिटी। ओके, इस तरह से लॉलेस था। उसने चोरी की, अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी, उसके बाद क्लर्गी मैन के घर से उसने काफ़ी सामान चुरा लिया, और एक स्टोर में भी घुस गया था जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, तो वहाँ से भी कई चीज़ें चुरा ली और वहाँ से भाग गया। ओके, तो ही वाज ए लॉलेस मैन। नेक्स्ट, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर? उस लंदन इसको के बड़े स्टोर में उसने घुसने की कोशिश क्यों की? ग्रिफिन could not resist the cold weather and decided to slip into a big London store. Actually, he was without clothes. He was feeling intense cold. So to protect himself from cold, he slipped into the big store of London. As the reason was midwinter, due to which it became difficult to wander around without clothes in London. Due to the intense cold, he was not able to roam in the streets of London without clothes. So, to make himself warm and to get clothes, he slipped into the big store of London. Okay? अपने आप को गर्म करने के लिए, बिना कपड़ों कहाँ घूमता वो, तो कपड़े लेने के लिए वो लंदन में घुस गया चोरी से। What did Griffin do in the shop of a theatrical company? थिएटर की कंपनी की शॉप में उसने क्या किया? ग्रिफिन फेस्ड हार्डशिप फॉर कोल्ड वेदर। बहुत सर्दी लग रही थी। ही ट्राइड द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग लाइक साइड विस्कर्स, ग्लासेस, फॉल्स नोज, बैंडेजेस, हैट एटसेट्रा। उसे कपड़े ही नहीं मिले वहाँ पर उनके, बट ही गॉट मुस्टैचेस, मूछें, बाल, बैंडेजेस, नकली नाक, चश्मा, हैट, ये सब चीज़ें उसको वहाँ पर मिल गई अपने आप को छुपाने के लिए। दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। अपने शोल्डर के ऊपर उसने हैट लगा लिया, बैंडेजेस बांध ली, इस तरह से वो विजिबल हुआ फिर। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द विजिबल मैन बिकम इनविजिबल? व्हाट डिड ही डू देन? विजिबल था वो इनविजिबल क्यों हो गया और कैसे हो गया? Villagers doubted the invisible man to be a thief. He was suspicious person. Everybody in the village had suspicion about his actions and his appearances, in which way he lived. सब कहते ये कैसे रहता है, क्या करता है, कितना सस्पेशियस ये पर्सन है, तो उनको जो है उस पर शक होता था कि ये बहुत गलत आदमी है, उसके एक्टिविटीज से, उसकी हरकतों से। Mrs. Hall bent to him for asking an explanation for the mysterious happening, and he threw off all he was bearing on her.
head so that he might become a man without a head. मिसिज हॉल तो उससे पूछने के लिए गई जो मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं, लोकेलिटी में चोरियां हो रही हैं, जो मिशीवियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कर रहा, आप तो नहीं कर रहे. बट ही बिकेम एंग्री, फ्यूरियस. ही थ्रू ऑल द थिंग्स ऑन द हेड ऑफ मिसिज फेस ऑफ मिसिज हॉल. अपनी जो आईपिंग होटल की मालकिन थी उनके ऊपर उसने सब अपना ऊपर जो बैंडेजेज और ये कैप ऐप लगाए तो उनके मुंह पे फेंक दिया, और जब उसने फेंक दिया तो वो इनविजिबल हो गया उससे. Soon the कांस्टेबल जैफर्ड अराइव टू अरेस्ट हिम. कांस्टेबल जैफर्ड उसको अरेस्ट करने के आया. लोगों ने मोहल्ले में शिकायत की थी कि ये चोर है, ये चोरियां करता है, लोगों को परेशान करता है. बट द इनविजिबल मैन थ्रू ऑल ऑफ हिज क्लॉथ्स टू बिकम इनविजिबल. सभी कपड़े उसने, जब कपड़े उतार देता था इनविजिबल हो जाता था, तो उसने अपने सभी कपड़े फेंक दिए वो इनविजिबल होने के लिए. एंड इन द ensuing scuffle knocked Jeffers unconscious and escaped. He knocked the Jeffer down on the ground and made him unconscious. जोरदार झटका दिया, धक्का दिया, जमीन पर गिर गया, वो अनकॉन्शियस हो गया. एंड एस्केप्ड. इस तरह से वो भाग गया, बच के. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू जेफर्स व्हेन ही ट्राइड टू कैच द इनविजिबल साइंटिस्ट. जब पकड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ उस कांस्टेबल को. ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय रिमूविंग ऑल हिज क्लॉथ्स. सब कपड़े रिमूव कर दिए, इनविजिबल हो गए. व्हेन ही सॉ कांस्टेबल जेफर, तो वो इनविजिबल हो गए, कपड़े उतार के. जेफर्स फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट बी सीन. वो किससे लड़ता कांस्टेबल. ही वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर वाज नोबडी. ही वाज हेल्पलेस टू कैच हिम. ही वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय ग्रिफिन. जमीन पे डाल दिया और वो बेहोश हो गया. ओके. So today we have discussed these questions. I will not discuss more questions because you will be exhausted. Okay. So in limited field we are supposed to discuss question answers. You must learn them. You must see this video. Then you will realize that you are very close to the answers of these questions. They all answers are very familiar to you. बहुत आपको अच्छे लगेंगे आंसर्स, क्या हमें ये सभी आते हैं, इसलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ इनके साथ. ओके. ओके. कंप्लीट दीज ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, लर्न देम, and it might be possible in my live class I will you will be supposed to tell all the answers to me. सभी मुझे आंसर्स आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स. ओके. थैंक यू. Have a nice day. God bless you, my dear students.